हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ फायर डैम्प, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फायर डैम्प। So today we are going to cover the topics detection and testing of the fire damp. Now if we talk about the detection and testing of the fire damp, there are different methods which are used for the detection and testing of fire damp, like chemical analysis by taking the air samples, or we can use the flame safety lamps in underground coal mines, or methane detectors to directly indicate the percentage of the methane gas. Basically fire damp is a mixture of methane gas and in the mine atmosphere. Okay, so if we have to detect the fire damp, then we can use the we can take the air samples and do the chemical analysis of these air samples in the laboratory, or we can take them to the lab where they will do the chemical analysis of these air samples and will tell you the percentage of the methane gas which is found in the mine atmosphere. Now if you does not want to do this thing because it is a long process, it is a lengthy process, then in that case for on the spot measurement and in a safe manner, we are at present we are using the flame safety lamps also in our underground coal mines, because flame safety lamp using of flame safety lamps is very easy, and everyone can use it, and it gives an approximate percentage of the methane gas present in the mine atmosphere. And but due to due to the developments at present, and some of the methane detectors are also developed which are digital indicators and directly indicate the percentage of the methane gas. तो अगर हम मीथेन गैस डिटेक्टर्स की बात करें तो आज के टाइम में हम 3 तरीकों से मीथेन गैस का डिटेक्शन कर सकते हैं, मीथेन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इन मेथड्स में आपका आता है सबसे पहले एयर सैंपल्स लेना और उसका ले जाके एनालिसिस करवा लेना। सबसे पहला काम तो ये हो जाता है। दूसरा काम ये हो जाता है कि फ्लेम सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल करिए, ठीक है, क्योंकि फ्लेम सेफ्टी लैंप देखिए कि सभी के द्वारा यूज किया जा सकता है और आसानी से यूज किया जा सकता है, और ऑन द स्पॉट, क्योंकि आपका केमिकल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो लेबोरेटरी में ले जाना, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आना, ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए और तुरंत ही मीथेन गैस का परसेंटेज पता करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, फ्लेम सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल करना है। या कि फिर आज के समय में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, इतना ज्यादा आपकी चीजों में नई नई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गया है, तो इसलिए मीथेन गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपका डायरेक्टली मीथेन गैस का परसेंटेज आपको शो कर देंगे, ठीक है। अगर हम मीथेन गैस के मीथेन डिटेक्टर्स के प्रिंसिपल्स की बात करें तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर मीथेन डिटेक्टर्स काम करते हैं, तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। Okay, so there are different methane detectors and each methane detector is based on some sort of principle. Now if we talk about the first methane detector, that is Wheatstone, first type of principle, that is the Wheatstone bridge principle, which basically uses the method which is used by the Wheatstone bridge principle is it measures the unbalanced electric current flowing in the circuit. On the basis of that only it tells the percentage of methane gas. The two methane detectors that work on this principle is the D6 methanometer and the BMI methane monitor. Okay, now another principle is the formation of the gas cap. If we talk about the formation of the gas cap principle, then on this principle two devices work, that is the flame safety lamp and the spear alarm. Okay, now if we talk about the principle of diffusion, combustion and contraction, okay, the next principle is the difference in refractive index of pure air and the methane air mixture. Okay, now the third principle is the infrared recorder. Fourth is reaction of methane with chemicals. Okay, reaction of methane with chemicals. Okay, these are the principles on the basis of which basically all the methane detectors used to work. Now if we talk about the Wheatstone bridge principle, as you can see over here, this is a Wheatstone bridge. Okay, in this the current flows when there is a potential difference. As we all know that current will flow from point A, to point B if there is a potential difference. Okay, current will flow from point A to point B if there will be a potential difference. Now what is done over here, that
these are the resistors. These are the resistors which are connected in this connection. Okay, along with this connection, and there is a galvanometer placed over at the center of this connection. Okay, now whenever the current comes from here to here, and then it will go from here to here, and finally go out from the point B. Okay, like this the current flow of the current will occur. Now this resistor will be kept enclosed in a chamber. These two resistors are kept enclosed in the chamber. Okay, when we used to introduce the our methanometer or methane detector in the atmosphere, which used to carry methane gas, then in that case अगर हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो मीथेन डिटेक्टर है जहां ऐसी जगह पर ले जाके यूज करते हैं जहां जिस माइन एटमॉस्फेयर में क्या हो मीथेन गैस होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो सैंपल चैम्बर है हम क्या करते हैं एयर को इसके अंदर डालते हैं. जैसे कि एयर इसके अंदर आता है, सेंसर्स जो है तो इसी के थ्रू लगे होते हैं, तो सेंसर्स के थ्रू आपका एयर यहाँ पे आता है इस सैंपल चैम्बर में. जैसे ही इस सैंपल चैम्बर में आता है एयर, अगर उसमें मीथेन गैस होगा, इफ द मीथेन गैस इज present in the mine atmosphere, then after coming into this sample chamber, the mine atmosphere when comes in contact with this resistor which is present in the sample chamber, then in that case there is a reaction between the methane gas and the resistor present in the sample chamber. तो उस केस में क्या होता है, जो सैंपल चैम्बर में रेजिस्टर है उसके बीच में और मीथेन गैस के बीच में रिएक्शन होता है. ड्यू टू दिस रिएक्शन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर गेट्स इंक्रीज्ड. अब इस सैंपल चैम्बर में जो रेजिस्टर है उसका रिएक्शन जैसे ही होता है तो रेजिस्टर का क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना. और ड्यू टू इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ द करंट विल चेंज एंड दिस विल बी इंडिकेटेड ऑन द गैल्वेनोमीटर. अब यही जो है तो करंट का जो फ्लो है तो इसके कारण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ड्यू टू दिस रिएक्शन, एंड आपका जो गैल्वेनोमीटर है इस चीज को शो करता है. ठीक है, अब आपका चूंकि आप भी जान रहे हो कि जैसे ही रिएक्शन होगा वहां की गैस जो है तो वो आपका हीट हो जाता है, रेजिस्टर हीट हो जाता है रिएक्शन के कारण, और इसी के कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है. रेजिस्टेंस चेंज जैसे ही होता है तो ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा शो किया जाता है. अब गैल्वेनोमीटर जैसे ही आपका शो करता है तो उसी से आप कनेक्ट करके उसके बेसिस पर ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर, आपको डिस्प्ले यूनिट, जो आपका डिस्प्ले यूनिट लगा रहता है उस पे आपको मीथेन का परसेंटेज शो कर देता है. ओके, like it is similar to like this only. Suppose that this is my methane detector. Okay, this methane detector works on the principle of Wheatstone bridge. It has an inbuilt Wheatstone bridge. The mine atmosphere will enter from this point and will go to the sample chamber, the resistor of this, and the whole setting is inside. The whole setting of the arrangement of the Wheatstone bridge is inside this device. Okay, the mine atmosphere will enter into this device going to the Wheatstone bridge into the sample chamber. When it will enter into the sample chamber, the resistance will change. Then the galvanometer will analyze it, the change in the resistance. After that, galvanometer send a message to the transmitter, which will display the percentage of the methane gas on the display unit, like you can see a display unit over here. Similarly, on the display unit it will show the percentage of the methane gas present in the mine atmosphere. Okay, now if we talk about the detectors which are used for the detection of the methane gas in the mine atmosphere, is the MSA D6 methanometer. MSA D6 methanometer can be used for such purpose. MSA D6 methanometer, it is a handheld device because it is used for the spot checking of the gas accumulation. Okay, its range is from 0 to 5%. It can measure from 0 to 5%, and a telescopic tube can also be used for the methane for the detection of the methane at a particular height
Okay, or near the, for sampling near the roof, telescopic tube can also be used, and the length of this telescopic tube varies from 760 mm to 1.42 meter. Nickel cadmium battery is used in this type of in this detector, which is rechargeable, which is a type of rechargeable battery, and it operates at 2.6 volt, and there are two rechargeable batteries are present in the MSA-D6 methanometer. It works basically on the principle of the wheat stone bridge. ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसका, तो जैसा कि हमने देखा कि आपका माइन एयर का सैंपल जैसे ही आपका कहां पर पहुंचता है, मिथेनोमीटर में पहुंचता है, जैसा कि मैंने आपको ये मिथेनोमीटर दिखाया। अब इस मिथेनोमीटर के अंदर ना पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है तो अरेंजमेंट बना रहता है। अब यहां से माइन एयर सैंपल ऊपर से, जैसे ये एक रिमोट ही है, अब मान लीजिए इसमें ये जो इंफ्रारेड रेज को छोड़ने के लिए जो ये लगा रहता है ना छोटा सा बल्ब, मान लीजिए ये सेंसर है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ से मीथेन माइन एटमॉस्फेयर अंदर जाएगा। ठीक है, माइन एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो अंदर जाता है। वो अंदर जाने के बाद कहाँ पर अटैच पहुंचेगा, सैंपल चैम्बर में। सैंपल चैम्बर में जैसे ही जाएगा तो जो छोटा सा रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो करंट को रोकने का काम करता है, वो रेजिस्टर क्या करेगा आपका, उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, मीथेन गैस के साथ, जैसे ही मीथेन गैस के साथ उसका रिएक्शन होगा तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बदल जाएगी। वो करंट को फ्लो होने भी दे सकता है और फ्लो नहीं भी होने दे सकता है, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ऐसे केस में जो उसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, वो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसमें कुछ रीडिंग्स आने लगती है, उसकी रीडिंग्स में बदलाव आने लगते हैं, और वही बदलाव के बेसिस पर वो क्या करता है, आपका एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है डिस्प्ले यूनिट के पास। तो डिस्प्ले यूनिट क्या करता है, आपका परसेंटेज एनालिसिस करके वहां पर आपका यहाँ पे डिस्प्ले पे परसेंटेज आपको मीथेन गैस का शो कर देता है। ठीक है, अब यही बात अगर MSA-D6 की जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए सेम इसी प्रिंसिपल पे MSA-D6 मिथेनोमीटर काम करता है। अब MSA-D6 मिथेनोमीटर ऐसा है कि बहुत ही हैंडहेल्ड डिवाइस है, हैंडी है। स्पॉट पे आपको कहीं पर भी मीथेन गैस का एमिशन चेक करना है या फिर अक्यूमुलेशन चेक करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 0 से 5% तक का मीथेन गैस का परसेंटेज आपको शो कर देता है। अगर आपको रूफ के पास क्या करना है, मीथेन गैस को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप टेलीस्कोपिक ट्यूब ऐसे अटैच करके इस प्रकार से, अब ये तो छोटू सा है ना, ये तो बहुत छोटू सा है, टेलीस्कोपिक ट्यूब तो इतना लंबा होता है, उसको ऐसे यहाँ पे अटैच करके और ऐसे हम जो है तो क्या कर सकते हैं, मीथेन गैस डिटेक्ट कर सकते हैं रूफ के पास में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। तो रूफ के पास में डिटेक्ट कर लेंगे। टेलीस्कोपिक ट्यूब की लंबाई 760 mm से लेके 1.42 मीटर तक की होती है, तो आराम से पहुंच जाओगे यार। ठीक है, 1.5 मीटर के आप 1.5 मीटर का ये पहुंच गए 3 मीटर की रूफ तक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें दो निकल कैडमियम की बैटरी लगी होती हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरी होती हैं और 2.6 वोल्ट पर ऑपरेट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये रहा MSA-D6 मिथेनोमीटर। जनरली आपने माइंस में ये देखा ही होगा, एंड आपने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका टेलीस्कोपिक ट्यूब, ये रहा आपका टेलीस्कोपिक ट्यूब। ये आपका फुसफुस लगा होता है, एस्पिरेटर बल्ब, इसको दबाया फुसफुस को तो MSA-D6 ने पूरा का पूरा सेंसर तक क्या पहुंच जाता है, आपका मीथेन गैस पहुंच जाता है, माइन एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो वहां तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर। ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर बेसिकली ये एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका मीथेन गैस को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करता रहता है। इसमें रिचार्जेबल बैटरीज लगी होती हैं जो कि जिनकी कैपेसिटी होती है 10 घंटे तक चलने की, और यह आपका 0 से लेके 3% तक मीथेन गैस को डिटेक्ट कर सकता है इजिली। इसमें बेसिकली इसमें अच्छा चीज क्या होता है, जैसे कि आपका जो D6 था, ठीक है, उसमें आपका फ्लैश लैंप नहीं लगा होता है, D6 में फ्लैश लैंप नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फ्लैश लैंप होता है जो कि 15 सेकंड में एक बार फ्लैश करता है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर आपकी कंडीशन वर्स हो जाती है तो उस केस में ये 1 सेकंड में एक बार जो है तो क्या करेगा, फ्लैश करता है बेसिकली। ठीक है, अब अलार्म को आप जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। अलार्म को उसके लिए आपका सेट करना जरूरी है, मतलब आप खुद से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि भाई इतने परसेंटेज अगर मीथेन है
तो आपको टू 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 करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नोटिफिकेशन लाइट अरे हाँ यार, आजकल के मोबाइल में कहाँ नोटिफिकेशन लाइट आता है, पहले के मोबाइल्स में आता था। वो सबसे स्पेशल तो सैमसंग के मोबाइल में आता था कि चार्ज हो गया तो ग्रीन जल जाएगा, चार्ज हो रहा है तो रेड जल जाएगा, नोटिफिकेशन आया है तो ब्लू कलर का जलेगा। वैसा तो नहीं होता है, रेड कलर का इसमें जलता रहता है, इतना स्मार्ट तो नहीं है ये, ठीक है। So basically, automatic fire dam detector. It is manufactured by MSA and it is a portable instrument used for the continuous monitoring of the methane. It contains a rechargeable battery and its battery backup is up to 10 hours. It used to measure 0 to 10 3% of methane gas in the mine atmosphere. Okay, 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 okay. And its range is 0 to 3% of methane. It detects approximately 0 to 3% of methane gas, and it also has a flash lamp which used to blink once in 15 seconds in the normal condition and flashes once in every 1 second in the alarm conditions. And the alarm at what the percentage at which must it must give you the alarm, it must give you the warning, can be adjusted by you only, and you can adjust the level at which it should give you the alarm. Installation: person can carry or suspend at the workplaces. Basically any person can use it at any place at the workplaces where he want to use. It also operates on the principle of the Wheatstone bridge. Now, MSA D6. MSA D6 MSA D6 हैंडहेल्ड डिवाइस है, मीथेन गैस के एक्यूमुलेशन को चेक करता है, रेंज है 0 से 5%, टेलीस्कोपिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको रूफ के पास मीथेन को डिटेक्ट करना है तो। इसकी खास बात ये होती है, इसमें निकल कैडमियम नाम की बैटरी होती है, ठीक है। और ये बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, उसको ले जाके ऐसे बकायदा, हिंदी में बताऊं, लककुल वामशी, वामशी हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में, बाकी है कुछ नहीं खास, बस व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आपको समझ में आ गया तो वो सिंपल सा व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें कि पूरा का पूरा गैस अंदर जाती है, रेजिस्टेंस चेंज होता है रेजिस्टर का, जिसके बेसिस पे गैल्वेनोमीटर उसको के रीडिंग्स चेंज होती है, जिसके बेसिस पे गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग्स के बेसिस पर ही मीथेन का परसेंटेज बता देता है। बस सिंपल सी कहानी। बाकी कुछ नहीं है। एंड टेलीस्कोपिक ट्यूब का इस्तेमाल किया, क्या बैटरी लगी हुई है, दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस डिवाइस। नाउ AFD2 Aptron India Limited, it has 2 units. Okay, now if we talk about the AFD2 automatic fire dam detector, it has 2 units, basically a flashlight alarm, a digital display, ठीक है। नहीं यार अभी तक तो नहीं हूं, करवा दो यार। Okay, it is a methane monitoring device and its range is from 0 to 5%. It is an intrinsically safe instrument. It has a battery backup of up to 15 hours. Sensors, if we talk about the sensors, its sensors work on the principle of the diffusion by using electrocatalytic balisters. हाँ पहले चैटिंग होगी उसके बाद, ठीक है, आगे नहीं, पहले शादी नहीं, पहले चैटिंग होगी फिर उसके बाद, ठीक, जैसा तुम लोग करते हो। इट कंसिस्ट ऑफ, रुक रे, कहा गया, हाँ, बेसिकली
It has sensors which basically work on the principle of the diffusion by using electrocatalytic palisters. It consists of a flashback arrestor and carbon cloth filter. It gives in normal condition it gives one flash per 15 seconds, and it at preset level condition it gives one flash per second. Okay, now we have to understand this principle very clearly. If we talk about this principle, FD2 not given over here, no problem. Diffusion, so let's talk about this principle, the principle of diffusion. What does the principle of diffusion means? Basically, it is a three-step principle. Now we will not talk about this at present. Okay, we will talk about this principle first of all. It is a three-step procedure. Three-step procedure. With how many steps procedure? Three steps procedure. In these three steps, the first procedure is diffusion. Basically, in this, what is diffusion? That the methane will, whenever the methane gas enters the, suppose that this is your methane detector, which works on the principle of diffusion, combustion, and contraction. When you will place this methane detector in that mine atmosphere, which contains the methane gas, at that time the methane gas will enter this device, and after that, after entering into the device, the methane is gas gets burned. Okay, the methane gas gets burned in the air, and it produces carbon dioxide and water in the form of water vapor. When this reaction occurs, so first of all, the diffusion, first procedure is the diffusion, that the methane gas will enter into this device. After that, the methane gas will burn, that is the combustion, and the last is the contraction. Due to burning, carbon dioxide gas is produced. So carbon dioxide is a heavy gas. Okay, its specific gravity is very high. That's why after burning, the contraction will occur. What do you mean by contraction? That it will gets contract. Suppose that if you are giving this much amount quantity of methane gas in this device, after combustion, this quantity of methane gas will contract to carbon dioxide, in the its volume will get decreased, and on that basis, the amount of contraction occurred, on that basis it will give you the readings, that what is the percentage of methane gas. Have you understood? इसमें होता क्या है कि सबसे पहले होता है डिफ्यूजन, मतलब कि मीथेन गैस को माइन से एयर को जो है तो डिवाइस में डाला जाता है। जैसे ही डिवाइस के अंदर माइन गैस चली जाती है तो वहां पे उसको जलाया जाता है। तो मीथेन गैस चूंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी में, मान लीजिए अगर जस्ट सपोज दैट इतनी क्वांटिटी में अगर मीथेन गैस आपने डाला उसमें, है ना, सुई 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 करके चली गई, ठीक है। अब जैसे ही वो जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो कम जगह घेरेगा। मीथेन गैस अगर इतनी जगह घेर रहा था, बिकॉज मीथेन गैस हैज लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट विल ऑक्यूपाई मच मोर स्पेस देन द कार्बन डाइऑक्साइड। सो आफ्टर बर्निंग, carbon dioxide is produced. Carbon dioxide will occupy less space than the methane gas. Then that is the difference of that space is calculated by the device, and on that basis, that is contraction, how much contraction has to place, on that basis only it will show you the percentage of the methane gas present in the mine atmosphere. Clear? Clear है? यार चिल्लाते चिल्लाते खांसी आने लगती भाई।
क्लियर है? Is it clear to everyone this principle? Raise your hands. Raise your hands. Okay. Now, as you all know that combustion is taking place over here. That means combustion means burning of methane gas. Methane gas. Okay. If you are burning the methane gas, then it is a very dangerous process, Babu. So, what you have to do? You have to keep yourself safe. Otherwise, it will burn the whole mines along with tandoori. Okay, like a tandoori. You have to stop this combustion inside the device only. It should not come out of the device. This will be your main target. Much more important than measuring the methane gas. Okay. दिस विल बी योर इंपॉर्टेंट टारगेट. ठीक है. अब आपका चूंकि जान रहे हो आग लगा रहे हो भाई साहब, अगर आग लग गई, ठीक है, तो तंदूर बना देगा पूरी की पूरी खदान को. ठीक. अब उससे बचने के लिए कि भाई पूरी खदान में आग ना लगे, जो आग लग रही है वो इस डिवाइस के अंदर ही लगी रहे, तो इसलिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू कीप द कंबशन फायर इनसाइड द डिवाइस ओनली? Tell me, fast, quick. Which device is used to keep the combustion fire inside the device only? Inside the instrument only. Anyone? एक तो ये एसी से और खांसी आने लगी. आप लोग टाइप करिए सोच के, तब तक मैं आता हूं थोड़ा दवाई लेके. सोच लिए? कहाँ सोचे हुए? कहाँ सर, कहाँ पढ़ाए हैं आप? इतनी बार पढ़ के आए हो तब भी. स्टोन डस्ट कहां से यूज होगा? व्हाइट वॉशिंग कहां से यूज होगा यार? मुझे डिवाइस के अंदर से आग निकलने ही नहीं देना है. जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बाहर आग नहीं आनी चाहिए. उसके अंदर आग लग रही ना इंस्ट्रूमेंट के अंदर, भाई डिफ्यूजन हुआ, पहले मिक्स हुआ, फिर उसके बाद डिवाइस के अंदर गया, डिवाइस के अंदर उस गैस को जलाया गया, जलाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बेस से उसके बाद इसने रीडिंग दी ना. तो जाहिर सी बात है आग अगर डिवाइस के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर लग रही है तो उस आग को बाहर आने से रोकना है. तो उसमें व्हाइट वॉशिंग ठूसोगे क्या जी? हैं? तो सबसे खाना है, खाया करो, खांसी ठीक रहेगी. नो खिचखिच, नो खिचखिच. अब इस डिवाइस में मैं स्टोन डस्टिंग करूंगा. सिलेंडर में क्या लगा रहता है? Which thing is installed in the cylinder so that the when you burn the gas, it should not go inside the pipe or inside the cylinder. Which thing is used? Which device is used? Write down. Flashback arrestor. Regulator. Regulator is a regulating device, yaar. It just regulates the quantity of gas coming out from the cylinder. Okay, but it does not stops the flame from going back to the cylinder. Basically gas is coming out of the cylinder. Okay, but and when you burn the gas, that flame does not go inside the cylinder. What is the reason? It is due to flashback arrestor. It does not allow the flame to go back into the cylinder. Regulator is just a device to regulate the quantity of gas flowing or the gas coming out. Now,
Ring-Rose fire dam detector work on this principle. Now, if we talk about the next principle, that is difference in the refractive index of pure air and methane air. Okay. Suppose that we have a device, and this device is such that all the gases are inserted in this device. Okay. All the gases, like the mine atmosphere will go inside this device, and this device works on the principle of the refractive index, difference in the refractive index. This device already knows what is the refractive index of the pure air. What is the refractive index of the pure air? But when the air containing the methane gas will enter into this device, there will be a difference in the refractive index. What do you mean by refractive index? Refractive index means, suppose that this is a glass slab. Okay, this is the glass slab. This is air, air, air. The refractive index of this glass slab is much more than the refractive index of the air. Okay, the refractive index of this glass slab is much more than the refractive index of the air. Every item, every substance has its own refractive index, transparent substance. Okay, now if we pass the light comes like this. Since the refractive index of the glass slab is much more than the refractive index of the air, the light will bend. The light gets bent. Okay. And when it enters the glass slab, the light gets bent when it enters the glass slab. And suddenly, when it comes out of the glass slab, refractive index again changes because the refractive index of the air is much more less than the glass slab. Then the direction of the light will again change. So the difference in the due to the difference in the refractive index, now you will be able to understand very nicely. Due to the difference in the refractive index, as you can see that the direction of the light changes. The direction of the light changes due to the difference of the refractive index. Similarly, this is a simple light. Okay, now just suppose that instead of glass slab, I should place a chamber in which mine atmosphere is filled. The air of the mine atmosphere is filled in this chamber. Okay. Now, if it is filled with pure air, then in that case, if this chamber is filled with pure air, mixture of methane. It contains a mixture of methane. Okay, methane gas. Pure air. Now, if this chamber contains pure air, then the light will go without any deflection straight outside this chamber. But if this chamber contains methane gas, then the refractive index of the chamber gets changed, due to which the light gets deflected from its original path. The light should go like this. It must go like this, but instead of going in this direction, due to the change in the refractive index, its direction gets changed.
And this deflection, as I will show you, okay, and this is the angle of deflection. This is the angle of deflection, alpha. And this much deflection will show you the concentration of methane gas in the mine atmosphere. The more the deflection, the more will be the concentration of methane gas. Understood everyone? आया समझ में? चलिए हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों को आया? All the English students, have you understood the basic concept of the change difference in the refractive index? Raise your hand. टुडुक 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 टुडुक, वेरी गुड. नाउ अब हिंदी वालों के लिए देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो हर एक चीज का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज है ना, उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे उतना ज्यादा डीप में, बेसिक चीज समझिए बस. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक ग्लास का टुकड़ा रखा, उसमें से लाइट ऐसे आ रही आ रही आ रही आ रही है, लेकिन ग्लास का जो टुकड़ा रखा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के मुकाबले ज्यादा है. तो जैसे ही लाइट उसमें घुसती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण वो हल्का सा बेंड हो गई, लेकिन जैसे ही वो ग्लास के बाहर निकली तो वो वापस से बेंड हो गई. क्यों? क्योंकि वो तो हवा में आग पहुंच गई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के मुकाबले कम है. ठीक है, तो हो क्या रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो लाइट अपने रास्ते से भटकेगी. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो लाइट अपने रास्ते से भटकेगी. और इसी के थ्योरी के बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने अपना डिवाइस बनाया. ठीक है, अब ये जो डिवाइस बनाया हमने, बेसिकली इसमें क्या किया कि एक छोटा सा चैम्बर लिया. ठीक है, एक छोटा सा इधर, हाँ, एक छोटा सा चैम्बर लिया और उस छोटे से चैम्बर में मीथेन गैस भर दी. अगर मैं सिंपल एयर भरता उस चैम्बर में तो लाइट एकदम सीधी निकल जाती, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदला. लेकिन अगर मैंने मीथेन गैस भरी उस चैम्बर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा. हो सकता है लाइट उधर को डिफ्लेक्ट करे, हो सकता है इधर को डिफ्लेक्ट करे, लेकिन डिफ्लेक्शन तो होगा. अब इसी डिफ्लेक्शन के बेसिस पे भाई लाइट सीधी जानी थी लेकिन डिफ्लेक्ट होकर इधर गई, फिर ऐसी जा रही है, तो ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया, इसी के बेसिस पे मैंने क्या पता कर लिया कि मीथेन गैस का परसेंटेज कितना है बाबू. आई बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, एक कितना रिफ्रैक्शन हो सकता है, मतलब लाइट को कितना ज्यादा डेविएट कर सकता है. ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे एयर एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो गया, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके बेसिस पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना मेरा रिफ्रैक्शन होने वाला है. वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अलग मैटर है, वो 9th की फिजिक्स में पढ़ लेना, 10th की फिजिक्स में पढ़ लेना. ठीक है, आईसीएससी वाले 9th वाले में पढ़ लेना और सीबीएसई वाले 10th वाले में. क्लियर है? हिंदी वालों हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स. मजा आ रहा है? आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है बाबू? बोलोगे सर एक बार में क्लीन होता तो काहे मिटाते बैठे हो? अरे क्या करें यार, तुम लोगों को मजा आना चाहिए बस पढ़ने. चलो, अरे पेन कहाँ रख दिया, देखे हो कहीं? पेन देखे हो? बोलो कहाँ सर, आप ही बड़ी मुश्किल से दिखते हो. नेक्स्ट, इंफ्रारेड रिकॉर्डर. ओहो 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 ओहो. अब इंफ्रारेड रिकॉर्डर क्या करेगा यार? देखिए, इंफ्रारेड रिकॉर्डर, इंफ्रारेड
रिफ्रैक्टिव, वो आपका डिवाइस कर रहा है, ये आपका डिवाइस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गैस इनके इसके अंदर गई, इसने धीरे से लाइट छोड़ी, ठीक है, लाइट जैसे ही इसने छोड़ी, पूरा पूरा वर्किंग इस डिवाइस के अंदर ही चल रहा है, लाइट इसकी इस डिवाइस ने छोड़ी, फिर इसने चेक किया कि आखिर कितना मेरा डेविएशन हो रहा है लाइट के पाथ में, उसके बेसिस पे ये आपको दे देता है रीडिंग्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये डिवाइस ले जाके रखना है, बट आपको प्रिंसिपल समझना है कि वर्क कैसे करता है ये डिवाइस, वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस। सोचो कितना बड़ा रॉकेट साइंस सिखा रहे हैं अपन, सीख रहे हैं, एक एक डिवाइस की वर्किंग जान रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर उसके क्या मसाला चल रहा है भाई, क्या खेल कूद चल रहा है उसके अंदर, ये चीज हम समझ रहे हैं। अरे मैं रुक गया था अभी, ठीक है, इंफ्रारेड रिकॉर्डर। अच्छा, अब इसको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड रिकॉर्डर, you have to imagine first of all that just give an answer to my question, that which color light you will be able to see from distance, which color of light you will be able to see from the farthest point, from a large distance, which color light? Red? Okay, 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 that's fine. Why? Why? What is the reason? Or blue color, and blue color, violet color, will you be able to see the blue and violet color from the farthest point or from large distance? No, you will not be able to see. What is the reason behind that? Because of the wavelength. Wavelength. Because of the wavelength. अच्छा, अब ये बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा? वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, आदित्य इतना होशियार है कि वेवलेंथ देखो बता दिया, वेवलेंथ का सिंबल भी बता दो आदित्य, बहुत तेज लड़का है। चलो आदित्य, वेवलेंथ का सिंबल बताओ फटाक से। बताओ बताओ। एज वी ऑल नो दैट spectrum of light, spectrum of light, I will come to this concept, I have to come to this concept, for that I have to explain everything in deep, okay? अरे नाम लिख दे भाई, नाम नाम बताओ, ये तो कोई भी बना के दे देगा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट is a band of, is a band of 7 colors, okay? We all know that seven band of 7 colors is called Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Vibgyor. Now we talk about the wavelength, okay? So violet color has the shortest wavelength, shortest wavelength.
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ओके, लैम्डा, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, सच में होशियार है यार बहुत। एंड रेड कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नाउ देखिए, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लाइट होती है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होता है, उसमें टोटल 7 कलर होते हैं। बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, संतरा कलर और लाल कलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। जो सबसे पहले है वायलेट कलर, बैंगनी कलर, उसकी वेवलेंथ जो है सबसे शॉर्ट होती, छोटी छोटी वेवलेंथ होती है। लेकिन वहीं पे जो लाल कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वेवलेंथ क्या है, क्या समुंदर का पानी उफान मार रहा है? नहीं बाबू, आपके दिल में उफान मचा हुआ है। तो वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो वायलेट कलर का अगर मैं वेवलेंथ बनाऊं, वेव्स बनाऊं, ठीक है, कौन सा कलर का? वायलेट, बैंगनी, तो इसकी वेव्स कुछ इस तरीके से जाती हैं। ये लाइट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक है। वेव की लेंथ क्या होती है? वेव की लेंथ क्या होती है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एक बार ऊपर वाला और एक बार नीचे वाला, इन दोनों को मिला के यहां से लेके यहां तक की ये जो लंबाई है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या हो गया, मिट गया? वाह, अरे यार, चलो ठीक है, फिर से बनाते हैं। हम्म, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो एक लंबाई बनती है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गया वेवलेंथ किसका? वायलेट कलर का, वी लिखा हो, लैम्डा वी, ठीक है। नाउ ये तो वायलेट कलर का वेव था, लेकिन अगर मैं ट्रेवल कराऊं किसको? रेड कलर को, किसको? रेड कलर को, तो रेड कलर की वेव्स देखना, विश विश, ये रेड कलर की वेव्स है, ठीक है। अब इसका देखना रेड कलर का कि वेव की लेंथ कितनी है। ये तो जस्ट इमेजिनेशन है, इससे भी बड़ी होती है, यहां से लेके यहां तक। अब कहां इसकी इत्तू सी वेव, कहां इसकी इत्तू सी वेव, ठीक है, और कहां इसकी इतनी बड़ी वेव, तो यही क्या कहलाता है? वेव की लेंथ। अब जो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तुरुक 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 करके तो कुछ दूर पे खत्म, पुफ। लेकिन जो लाइट ऐसे जा रही है वो तो राक्षस जैसे जाएगी भाई, like this, and it will cover a longer distance, okay. Now we have to focus on this turuk 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 poof poof. Why we have to focus on this? Infrared recorder work on this poof. Infrared recorder work on this poof. How? Because
as you have seen, violet color goes turuk 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 and poof. Why? It gets absorbed in the atmosphere. It gets absorbed in the atmosphere, just gets refracted, dispersed in the atmosphere. Okay, that's why it shows poof. Now if we talk about the infrared recorder, basically we have a device. Again we have a device. अब बोलोगे सर ये क्या बार बार एसी का रिमोट सामने ले आते हैं, एसी दिखा रहे हैं? हाँ यार एसी तो लगा है। तो हमारे पास एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस, ये डिवाइस इस बेसिस पर काम करता है। माइन गैस को अंदर टुचकू, ठीक है, वी विल इंसर्ट द माइन गैस into this device, and this device will eject many infrared waves. It will eject different infrared waves. Basically it will eject 7 infrared waves of wavelength 7.5 microns. It will eject the wavelengths of 7.5 microns. Okay, infrared waves. And if it absorbs, if it gets absorbed in the mine gas which is inserted into this device, then it will tell the percentage of methane gas. The quantity of infrared waves absorbed by the mine gas, the mine air which is which is present inside this device, the quantity of infrared waves absorbed by the mine air will tell you, will on the basis of that only the device will tell you the percentage of methane gas present in the atmosphere. अब देखिए हुआ क्या, जैसा कि मैंने कहा पुफ। अच्छा ये बताओ, ये पुफ वाला डायलॉग किस मूवी का है? बहुत ही छोटा सा, बहुत प्यारा सा, मस्त लगता है पुफ। तो इसमें हुआ क्या कि जैसा कि मैंने कहा वायलेट कलर ऐसे ऐसे धीरे धीरे गई, शॉर्ट वेवलेंथ से कुछ दूरी पे जाके पुफ हो गई, डिस्पर्स हो गई। सिमिलरली हमने क्या किया, हमारे पास जो डिवाइस था उसमें हमने मीथेन गैस भरी, मतलब ऐसा एयर भरी जिसमें कि मीथेन गैस है। फिर हमने उसमें से अपनी इंफ्रारेड वेव्स छोड़ी। जैसे ही इंफ्रारेड तुरुक 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 करके गई और उस जहां पर माइंस का एयर प्रेजेंट है डिवाइस के अंदर, वहां पे जैसे ही घुसा, वहां पे जैसे ही घुसा वो हो गया पुफ। और जब वो पुफ हुआ तो क्या हुआ, जब वो पुफ हुआ तो क्या हुआ, वहीं पर कि कितनी क्वांटिटी में इंफ्रारेड मेरी बची और कितना बाहर आई उस माइन एटमॉस्फेयर से, उसी के बेसिस पर ये आपको मीथेन गैस का परसेंटेज बता देता है। क्या बात है, भीड़ बढ़ती जा रही है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने ज्यादा लोग आओगे उतना मजा आएगा। डिफ्लेक्ट नहीं है, डिफ्लेक्ट नहीं है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। डिफ्लेक्शन तो भाई वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, ठीक है। जस्ट सपोज दैट, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, लेट मी टेल यू। बन जाएगा? नहीं, चलो छोड़ो। देखो ये देखो, वाइट स्क्रीन करें यहाँ पे नहीं, सही नहीं आ रहा यार, मेरे चेहरे पे लाइट नहीं पड़ रही, काला काला दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। चलो कुछ और करते हैं, कुछ और करें। जो भी कसमें खाई थी हम। पेज का कलर कैसे चेंज होगा जी? ना बोले सर खेल रहे हैं मेरे साथ। नहीं यार खेल नहीं रहा हूं, मैं खुद इसका पेज का कलर चेंज करने का सोच रहा हूँ, तब तो समझ में ठीक ठाक। चलो आज इसमें बढ़ाते हैं।
देखिए ये देखिए, ये आपका एक छोटा सा चैम्बर है डिवाइस के अंदर। डिवाइस मान लीजिए बहुत इतना बड़ा डिवाइस है, उसको मैंने थोड़ा सा उसके अंदर के चैम्बर को बड़ा करके दिखाया। यहाँ पे ढेर सारी गैस भरी पड़ी है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, ढेर सारी मैंने इंफ्रारेड वेव्स भेजी, ठीक है, ढेर सारी। इस टाइप से मैंने ढेर सारी इंफ्रारेड वेव्स भेजी, ठीक, ढेर सारी ऐसे जा रही है इंफ्रारेड वेव्स, जा रही है एकदम, ठीक है, सब अंदर जा रहे हैं, ढेर सारी वेव्स जा रही हैं, करोड़ों वेव्स जा रही हैं। अब मीथेन क्या करता है, मीथेन गैस अगर इसमें मौजूद होगा तो ये आपके इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके इस पार जैसे ही इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगी तो 1 2 3, बस इतनी निकली, बाकी कहां गई, बाकी की इंफ्रारेड वेव्स कहां गई, गायब हो गई, एब्जॉर्ब कर लिया। मीथेन गैस, मीथेन एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। मीथेन गैस ने क्या किया, इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ ही निकला। अब इसी के बेसिस पर आपका जो सेंसर है, जो सॉरी जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको रीडिंग दे देगा कि भाई इतना एब्जॉर्ब किया, मतलब इतने परसेंटेज मीथेन गैस मौजूद है। क्या है यार, ऐसा गंदा वीडियो आ रहा है। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। तो आपका रिएक्शन ऑफ मीथेन विद केमिकल्स, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो। सो इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग then raise your hands. Now you have to just remember the devices. The device which works on the principle of diffusion, combustion and contraction is the ring rose 5-dam detector. The device which works on the principle of refractive index is the Riken interferometer, and the device which works on infrared recorder is infrared spectrometry. Okay, these are the basic concepts which you have to understand. What's the time? 12:23. Okay, here just you have to remember that the sensors, it works on the principle of the diffusion, which AFD2 by Uptron India Limited, it works on the principle of diffusion, as we have all known that what is the principle of diffusion. Next one is MEMAX. MEMAX basically MEMAX, it's fail-safe feature, it has a fail-safe feature, it doesn't matter. Catalytic balusters and directly connected with a flame-proof relay to control the electrical power supply. Okay, what else we have? MEMX 1 fail-safe feature and interference methanometer. This is the interference methanometer, Riken interferometer, which works on the principle of the refractive index. Okay, you can just watch these things, the deflection of the light when it passes through the, and sometimes the refractive index is calculated with the help of the this gap also. If this gap is more, then it is said that the refractive index is more, then in that case also
your device will calculate this gap. On this basis only it will show you the percentage of methane gas. This is the Riken interferometer, which works on the principle of refractive index. Ringrose fire dam detector, which works on the principle of diffusion, combustion and contraction. This is the Ringrose fire dam detector. Okay. Spectrometry. Okay. These are, you have to remember all these infrared waves. The infrared waves of 0.25 to 0.4 micrometers are called ultraviolet rays, and the rays which have a wavelength of 0.4 to 0.7 micrometers are called visible bands, and the rays having a wavelength of 0.7 to 2.5 micrometers are called the near infrared waves, and the and the rays having the wavelength of 2.5 to 25 micrometers are called the middle infrared waves, and the waves having and the rays having wavelength of 25 to 500 micrometers are called the far infrared waves. Okay, basically methane gas absorb the middle infrared waves. Okay, that is this one. Okay. And the principle is that each gas absorbs infrared radiations of a particular wavelength. Methane molecules absorb IR waves, due to which temperature of the molecules increases, due to which its pressure also increases. So you can remember these things. Once you have to read and you will revise everything. Okay, and nothing more than that. Just take a look over that and everything will be clear. Just you have to read once about all the devices, and your concept will be clear. It's because specifications are given and that are not of that much importance, because I have told you the basic principles of the methane detectors. These are the most important things which you have to remember. This one page is very important for you, very 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 important. ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, अब देखिए मुश्किल से 2-3 टॉपिक्स बचे हैं. अरे आदित्य, तुम तो ये सब पढ़ा है ना, एएमटी के लेक्चर्स में तो सारी चीजें हैं ही. पटेल जी, ठीक है ठीक है. देखो, डिफ्यूजन एंड कॉन्ट्रैक्शन में बस होता इतना है, 3 चीजें हैं: डिफ्यूजन, कंबशन, कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं. पेन खो जाता है यार, इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं. यहाँ पे बना देता हूं. तू बंद हो यार, बहुत हुआ तेरा. देखिए पटेल जी, ओके ओके, नहीं ठीक है, रिवाइज तो आप करना ही चाहिए, और आपका अपलोडेड है ऑलरेडी भाई साहब. एक बार फिर से कर देंगे. हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? मेरा ये कहना था, क्या डिफ्यूजन वाला? चलो ठीक है. देखिए मेरा ये डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंटेनर है. ठीक है, उस डिवाइस के अंदर छोटा सा कंटेनर है. ठीक, उस कंटेनर में मैंने माइंस की गैस डाली. ऐसे माइंस की एयर को उसके अंदर डाला मैंने. ठीक, वो आया यहाँ, अंदर गया, सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे. ये पूरा इकट्ठा हो गया. ठीक है, ये पूरी गैस इकट्ठा हो गई यहाँ पे. अब हुआ यूं कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा जुगाड़ बैठाया कि ये अगर इसमें मीथेन गैस होगा तो इसमें आग लग जाएगी.
अगर इसमें मीथेन गैस होगा तो इसमें आग लग जाएगी। तो सबसे पहले सब कुछ आया, डिफ्यूज हो गया, एक साथ वहां पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन हुआ मतलब कि ठीक है, मैंने माइंस के एटमॉस्फेयर से एकदम खींच के इसमें डाल दिया, इस चैम्बर में डाल दिया पूरी की पूरी हवा को। ठीक है, जब हवा को इसमें डाला तो पूरा ऐसे घूम रहा है उसी के अंदर। फिर मैंने एक ऐसा जुगाड़ बैठाया कि मुझे इस हवा को जलाना है। अगर मीथेन गैस होगी तो जल जाएगा, ठीक है, अगर मीथेन गैस होगी तो जल जाएगा। कुछ ऐसा सेटिंग बनाया मैंने। तो जैसे ही मैंने इसको जलाया, ये धगधगा के जल उठा। ठीक है, ये क्या हो गया, जलने लगा। और जब ये जला, क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस मौजूद थी। क्या था मौजूद? मीथेन गैस मौजूद था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी मीथेन गैस अभी आप देख रहे थे, जिसने कि पूरा का पूरा भर के रखा हुआ था इस कंटेनर को, वो मीथेन गैस तो जल गई। और जब वो मीथेन गैस जल गई तो इस कंटेनर के अंदर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर के फॉर्म में पानी। ठीक है, कन्वर्ट हो गया मीथेन गैस उसमें। अब ये जो कन्वर्ट हुआ, तो ये देखिए, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्का होता है तो ये नीचे कम जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। सॉरी, हल्का नहीं, भारी होता है। ठीक है, तो ये कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। मीथेन गैस हल्की होती है हवा से, तो ये इतनी सारी जगह घेरेगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से भारी होती है, तो इतनी सी जगह घेरेगी। तो अब देखिए, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड ने इतनी जगह घेरी। इसी में पानी भी है, वाटर वेपर भी है, वो भी हैवी होता है, वो भी यही रहेगा, बोलेगा हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड में सॉल्युबल है, 100% सॉल्युबल है। तो अब क्या होगा कि यहां पर इतनी जगह खाली रह गई, इतनी जगह खाली रह गई। हुआ क्या? सबसे पहले हुआ डिफ्यूजन, यहां पर हुआ डिफ्यूजन। फिर यहां पर क्या हुआ? कंबशन। कंबशन, आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, जिसमें उसने सिर्फ इतनी सी ही जगह घेरी, इतनी जगह खाली रह गई, इतनी जगह खाली रह गई। तो ये क्या हो गया? जो गैस अभी तक इतनी जगह घेर रही थी, जो इतनी जगह घेर रही थी अभी तक, वो गैस अब कितनी जगह घेर रही है? इतनी सी ही जगह घेर रही है। तो हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्शन। अब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना होशियार है कि उसको जैसे ही पता चला कि भाई साहब इसमें तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसमें तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसके बेसिस पर कि भाई कितनी जगह खाली हुई, कितनी जगह खाली हुई, उसके बेसिस पर आपका डिवाइस क्या कर देगा? आपको रीडिंग दे देगा कि लो भाई साहब इतने % मीथेन यहां मौजूद है। हाँ, अरे बाप रे। क्लियर? क्लियर एवरीवन? रेज योर हैंड। पटेल जी, आपको क्लियर हो गया क्या? हाँ, ठीक है, खत्म करते हैं इसको यहीं पे। शायद 2 बजे से आप लोगों की क्लास है ना, एक एक गोराई की, एक एक गोराई की क्लास है, प्रदीप सर ले रहे हैं शायद से, है ना? तो जाइए, नहाइए धोइए, खाना पीना खाइए, थोड़ा मुंह वो धो के आराम से नहा धो के फ्रेश माइंड करिए, मूड अपना फ्रेश करिए। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा ना। अच्छा ये बताओ, ठीक है, बाकी जिसको जाना हो जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। हाँ, तो आपके लिए देखिए, एब्जॉर्ब का मतलब मैंने कहानी कहां से स्टार्ट की थी कि एक नीली लाइट है जो कि कुछ दूरी पर जाके तुड़ुक 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 जाके पुफ हो जाती है। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? हवा है, उसने उसको फैला दिया, वो फैल जाती है उसमें। ठीक है, लाइट जो है वो उसमें फैल जाती है। लेकिन वहीं पे लाल लाइट,
उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो फैल नहीं पाती है, वो इजीली मूव कर जाती है उसके अंदर से। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, हट्टा कट्टा है लाल लाइट, ठीक है, बहुत ताकतवर है, बोलता है माइल वेवलेंथ इतनी ज्यादा है हम तुमको एक छलांग में कूद जाएंगे भाई साहब। वहीं पे ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, बैंगनी कलर की जो लाइट है वो इतनी कमजोर है कि वो बेचारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, खत्म हो गई, कमजोर है। सिमिलर इसी तरह से जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, तो अलग अलग माइक्रोन्स की इंफ्रारेड वेव्स को अलग अलग कलर की लाइट जो है तो एब्जॉर्व, सॉरी, अलग अलग गैसेस एब्जॉर्व करती हैं। जितनी भी गैसेस है माइंस की, हर एक गैस अलग अलग वेवलेंथ की जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब इन द सेंस पुफ कर देना, उसको ऐसा डिस्पर्स कर देना कि वो आगे पहुंच ही ना पाए, वो आगे पहुंच ही ना पाए, उसको ऐसा डिस्पर्स कर देना। अरे वाह, वेरी गुड हमारे जागरूक नागरिक, वोट देना जरूरी है, ठीक है, तो जहां जहां भी आज वोटिंग है तो जरूर वोट दें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें कि वोट देना है, ठीक है। तो लाइट, हाँ, तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो क्या हो जाती हैं, मीथेन गैस में जाके कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंफ्रारेड वेव्स क्या हो जाती है, मीथेन गैस में जैसी कांटेक्ट में आती हैं पुफ हो जाती, मतलब कि डिस्पर्स हो जाती हैं, आगे बढ़ना उनके लिए कठिन हो जाता है ना। कुछ बच जाती हैं तो पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जो नीले कलर की लाइट है वो पुफ हो गई तो आगे आप दूर खड़े हो तो दिखाई नहीं देगा, आपको तब भी दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ जल रही है, कुछ कुछ पार्टिकल्स चले आते हैं, कुछ कुछ वहीं रह जाते हैं। अरे भगवान, थका दिए यार आज तो तुम लोग, बहुत मेहनत कराते हो। चलो ठीक है, जाओ मूड फ्रेश करो ताकि 2 बजे से मन लगा के क्लास ले सके, है ना। Till then, all the best and thank you so much. Good night everyone. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.